रियासती काबीना ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को मंजूरी दे दी। इस इजलास की सदारत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने की। काबीना में मंजूरी से पहले बजट की तजावीज़ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला के दफ्तर के एक ट्वीट में ये बात बताई गई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव 6 फरवरी को 10:30 बजे दिन बजट पेश करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर उमूर मुक़र्रना प्रशांत रेड्डी कानून साज कौंसिल में बजट पेश करेंगे। 7 फरवरी को असम्बली का इजलास मुनक्किद नहीं होगा। बजट सेशन 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया गया है। आम बजट पर मुबाहिस और इसका वजीर का जवाब 8 फरवरी तक होगा। वज़ीर IT तारक रामाराव ने असम्बली में मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दौर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा इफ़रात ज़र, सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर्स की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें देखी जा रही हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के वज़ीर आज़म के वादे को भी याद दिलाने की ज़रूरत है। 2022 तक बुलेट ट्रेन हकीकत में तब्दील करने उनके वादे को भी वज़ीर तारक रामाराव ने याद दिलाया। साथ ही हर हिंदुस्तानी के पास 2022 तक ज़ाती मकान के होने से मुताल्लिक़ मोदी के वादे को भी उन्होंने दोहराया। ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాలి అధ్యక్ష, హైయెస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్, హైయెస్ట్ సిలిండర్ ప్రైస్, హైయెస్ట్ పెట్రోల్ ప్రైస్, ఇక అవి కాకపోతే ఇంకా మీదికెళ్ళి మొన్న మా రాజేంద్రన్ ఒక మంచి మాట చెప్పిండు బడ్జెట్ తర్వాత, చాలా బాగా అనిపించింది విన్నాక. మోడీ గారు అలవి గాని హామీలు ఇయ్యరు, చాలా గొప్ప మనిషి ఆయన, అసాధారణమైన మనిషి, ఒక ఋషి అని మా రాజేంద్రన్ చెప్పిండు. నేను నిజమేనేమో అనుకొని తెలియక గూగుల్ని అడిగిన సార్. గూగుల్కి చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, మోడీ గారట 2018లో మాట ఇచ్చిండు సార్, PM ప్రామిసెస్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబుల్ బై 2022. 2022 కల్లా ఈ దేశంలోని రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తా అన్నది నరేంద్ర మోడీ. ఇంకేం చెప్పిండు తెలుసా, PM బుల్లెట్ ట్రైన్స్ టు బి రియాలిటీ ఇన్ ఇండియా బై 2022. 2022 కల్లా బుల్లెట్ ట్రైన్లు దేశమంతా ఉరుకుతూనే ఉంటాయి, మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఎక్కచ్చు అన్నాడు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఇంకేమన్నాడు అధ్యక్ష, ఎవ్రీ ఇండియన్ విల్ హ్యావ్ అ హౌస్ బై 2022. 2022 కల్లా ప్రతి భారతీయుడికి ఇల్లు ఉంటది, 57 లక్షల ఇల్లు కట్టిస్తా నరేంద్ర మోడీ. 2022 కల్లా ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ ఇస్తా నరేంద్ర మోడీ. ప్రతి ఇంటికి, ఊరుకు కాదు, ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ ఇస్తా నరేంద్ర మోడీ. 2022 కల్లా ఎకానమీ $5 ట్రిలియన్ అవుతుంది నరేంద్ర మోడీ. 2022 కల్లా అంతరిక్షంలోకి భారతదేశం నుంచి ఆస్ట్రోనాట్లను పంపుతా నరేంద్ర మోడీ. అలవి గాని హామీలు ఆయన ఇయ్యడు, మాకు తెలుసు అధ్యక్ష. ఇంకో ఇది అధ్యక్ష, PM ప్రామిసెస్ టు డబుల్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్, ఎవ్రీ ఇండియన్ విల్ హ్యావ్ అ హౌస్ బై 2022 నరేంద్ర మోడీ. ఇంకా గమ్మత్ చెప్తా అధ్యక్ష, మేము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి, లక్షలాది మంది రైతులకు న్యాయం చేసే కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడితే వీళ్ళు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష, 1,00,000 కోట్లు పెట్టి ప్రాజెక్టు కడతారా, అలా ఎంత అవినీతి పొంగుతుందో అని చెప్పి ఓ సంస్థలను పంపుతా ఉన్నారు. వేట కుక్కలు తిరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష తెలంగాణలో. మా వివేక్ చెప్పిండు, తిరుగుతా ఉన్నాయి, వీళ్ళ మీద పడి వాళ్ళ మీద పడి, వాని కొట్టి వీని గుద్ది ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి తనలాడుతున్నారు అధ్యక్ష. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇది నరేంద్ర మోడీ స్టేట్మెంట్, 1,10,000 కోట్లతోని ఈ దేశానికి బుల్లెట్ ట్రైన్ అవసరమా అని ప్రతిపక్షం అడిగింది. ఆయన ఏమన్నాడు ఎరికేనా, ఆయన అంటాడు, దోస్ అపోజింగ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ ట్రావెల్ ఆన్ బుల్లక్ కార్ట్స్ నరేంద్ర మోడీ. अंडर 19 क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी पर क्रिकेटर्स को रुकन कौंसिल कविता ने तहनीत पेश की। त्रिशा और यशाश्री ने कविता से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की, जिनको कविता ने तहनीत पेश की। उन्होंने फाइनल मैच में इन दोनों के बेहतर मुजाहरे की सताइश की और कहा कि ये कामयाबी तमाम दीगर के लिए एक जज्बा बन गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सिलसिले में कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने रियासती कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात की। हैदरगुड़ा में MLA क्वार्टर्स में ठाकरे के साथ सदर PCC रेवंत रेड्डी, CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, MLA वीरैया ने मुलाकात की। इस मुलाकात में असम्बली इजलास और यात्रा के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। गांधी भवन में भी दीगर कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। प्रदेश में जो मीटिंग हुई 6 तारीख को PCC चेयरमैन इसको शुरुआत करेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए। బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రెండు ఒకే తానులోని ముక్కలు. నిన్నటి గవర్నర్ గారి ప్రసంగంతో రాజ్ భవన్ ప్రగతి భవన్ యొక్క అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమాన్ని మనం స్పష్టంగా చూసినాము. గవర్నర్ గారు పచ్చి అబద్ధాలతో
చంద్రశేఖరరావు గారిని పొగిడే కార్యక్రమం చేపట్టిండ్రు. చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस में शमूलियत का सिलसिला रोज बरोज जारी है। पार्टी उसूलों के साथ साथ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी मौजूद बहस बनी हुई है। प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से महाराष्ट्र के साबिक़ एमपीज़, ज़िला सदर नशीन, सीनियर कायदीन ने मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में रैतु बंधु, दलित बंधु, मुफ्त बरक़ी, आसरा वज़ाइफ, पल्ले प्रगति, पटना प्रगति, ज़रई तरक्की, सनती तरक्की के बशमूल दीगर फलाही और तरक्याती कामों की तफसीलात वज़ीर आला से इन अफराद ने हासिल की। तेलंगाना हाईकोर्ट की जज प्रियदर्शनी ने विकाराबाद ज़िले में बार एसोसिएशन की इमारत का इफ्तिताह किया। बातज़ा उन्होंने अदालत के अहाते में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के इजलास मुनक़िद किए। उन्होंने नाबालिग बच्चों की शादियों, इंसानों की स्मगलिंग, मुनशियात पर तमाम अवाम में बेदारी की हिदायत भी दी। रियासती वजीर दयाकर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वाईएसआर ने उन्हें कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अदम शमूलियत पर उन्हें सियासत से बेदखल करने का इंतबाह दिया गया था। ఎంపీ గెలిచిన తర్వాత నన్ను రాజశేఖర్ రెడ్డి రమ్మన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో. నేను రాను సార్ అన్నా. నువ్వు రావాలి, రాకపోతే నువ్వు రాజకీయాలలో అడుగు పెట్టకుండా చేస్తాను, మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి సార్. ఆ పగతో ఏం చేసిండు, 2 ఎంపీలు ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ చేసింది. మళ్ళీ వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే వస్తాడు అని వర్ధనపేట కూడా అటు ఇటు కలుపుకొని అసలు పట్టి అన్ని కలిపి అది కూడా ఎస్సీ చేసింది. కొన్ని ఎస్సీలు వస్తారు, మనోళ్ళే వస్తారు కానీ అంటున్నాం. అప్పుడు పాలకులకు వచ్చినాక మీరందరూ ఆదరించి గెలిపించారు. మీరందరూ रात में पेट्रोलिंग की ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए 2 मुलाजमीन पुलिस कैमरे में कैद हो गए। पंजागुट्टा रक्षक पुलिस से वाबस्ता 2 मुलाजमीन पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान पुलिस की गाड़ी को सड़क के किनारे ठहराकर शराब नोशी करते हुए पाए गए। ये वाक़या इरम मंजिल दिलेरिया माल के हुदूद में पेश आया। मिर्चल जिला शामीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में तोमकुंटा में दोस्त की बीवी की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया गया। इस मुलजिम की शिनाख्त चक्रधर गौड़ के तौर पर की गई है। तोमकुंटा बल्दी हुदूद में रहने वाले एक शख्स की गैर मौजूदगी पर इसके मकान में दाखिल होकर मुलजिम ने इसकी बीवी की इस्मत रेजी की कोशिश की, ताहम चीखो पुकार पर वो वहाँ से फरार हो गया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए इसको रिमांड कर दिया। చక్రధర్ గౌడ్ జీడిమెట్లో మొన్న సాయంత్రం 6 గంటలకు పార్టీ చేసుకుంటున్నాడు. దానికి ఈ బాధిత మహిళ యొక్క భర్తను కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. డోర్ కొట్టడంతో ఆ బాధిత మహిళ నా భర్తనే ఇంటికి వచ్చింది అనుకొని డోర్ తీయడంతో ఇతను చక్రధర్ గౌడ్, నేను వాళ్ళ భర్త వాళ్ళ స్నేహితుడు, లోపలికి వచ్చి అది ఇది మాటలు చెప్పేసి, నేను నాకు దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, మీ ఆయనకి ఏం లేదు, నాతో నుండు అని అమ్మాయిది ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని అది మీద చేతులు వేయడం, అవి మిస్బిహేవ్ చేయడం జరిగింది. బలాత్కారం చేయబడంతో నేను అందరికీ చెప్పేసి అరుస్తా అని చెప్పేయడం కానీ అక్కడి నుంచి అతను పారిపోవడం జరిగింది. शंकरपल्ली नारसिंगी में ट्रैक्टर की चोरी की वारदातें अंजाम देने वाली टोली के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 4 मसरूखा ट्रैक्टर्स जब्त कर लिए गए। किसानों के मकानात के सामने ठहराई गई ट्रैक्टर्स को ये चोर निशाना बनाते हुए उनकी चोरी किया करते थे। मसरूखा गाड़ियों को महाराष्ट्र मुंतकिल करते हुए उनको नकली दस्तावेजात तैयार करते हुए फरोख्त कर दिया जाता था। ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్కి సంబంధించి ట్రాక్టర్స్ మరియు 2 వీలర్స్ కూడా థెఫ్ట్కి సంబంధించి అయితే అక్కడ లోకల్ కార్ వేసుకొని మనకు దొరికినప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒక రాడు, ఈవెన్ పెట్రోలు, అంటే మనకు ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే అవసరం ఉంటాయో
ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు క్యారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళపైన మనకున్న నామ్స్ ప్రకారం పీడీ యాక్ట్ అప్లై అవుతుందా లేదా అనేది జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద రికార్డ్స్. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న అఫెన్సెస్ ఇది ప్రైమరీగా ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్కడన్నా ఒక యూనిట్లో ఎన్ని అఫెన్స్లు ఉంటాయి, దానికి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి అక్యూజ్డ్ మీద పీడీ యాక్ట్ ఖచ్చితంగా పెట్టడానికి. अमेरिका में गुब्बारे के जरिए जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इस कशीदगी की वजह से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपना चीन का दौरा मुलतवी कर दिया है। अमेरिका ने गुब्बारे के जरिए जासूसी को नाकाबिल कबूल और मुल्क की आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ब्लिंकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुब्बारा वाक़े से इस दौरे का मकसद मुतासिर हुआ है। ये दौरा आज से शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि इस वाक़े को नुमाया किया जाए। यह आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने गुब्बारा अमरीकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर अफसोस का इजहार किया और इसे सिविलियन एयरशिप करार दिया, जिसका इस्तेमाल मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए किया जा रहा है। चीन ने कहा कि यह गुब्बारा कम सलाहियतों की वजह से रास्ता भटक गया। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि यह इंतहाई बुलंदी से जासूसी करने वाला गुब्बारा है। चीन की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीकी आसमान पर चीन की एयरशिप की परवाज एक हादसा है। वजारत खारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी सियासतदां और मीडिया बीजिंग को बदनाम करने के लिए सूरत हाल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बीआरएस के बरसर इक़्तिदार आने पर तेलंगाना में नाफिज तमाम स्कीमात महाराष्ट्र में नाफिज करने का ऐलान किया है। मराठवाड़ा के नांदेड़ में केसीआर ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इंतखाबात में बीआरएस की सरकार बनने पर 2 साल के अंदर महाराष्ट्र के हालात बदले जाएंगे। जो स्कीमात तेलंगाना में नाफिजुल अमल है वो स्कीमात महाराष्ट्र में भी नाफिज की जाएंगी। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि वो किसानों के लिए काम करेंगे। बीआरएस चीफ ने अपने खिताब में ये भी वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ मुल्क में बदलाव लाने के लिए कौमी सियासत में आए हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद कई हुकूमतें, सरबराहान और लीडर्स बदलने के बावजूद मुल्क के हालात नहीं बदले हैं। केसीआर ने कांग्रेस के 54 साल दौरे हुकूमत और बीजेपी के 16 साल दौरे हुकूमत में की गई तरक्की पर सवाल उठाए हैं और मुल्क की हालत ज़ार के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी हैदराबाद में धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले 3 अफराद के खिलाफ दर्ज केस की तहकीकात करेगी। शहर हैदराबाद पुलिस ने दशहरे के मौके पर हैदराबाद में धमाकों की साजिश रचने वाले मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस केस की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंपी है। जराये ने बताया कि गिरफ्तार अफराद धमाका खेज मवाद पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुँचाया करते थे। एनआई मुल्जिमीन के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई करेगी। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ के दौरे के मौके पर गुरुद्वारे में खुसूसी दुआ की है। मराठवाड़ा के नांदेड़ में बीआरएस के जलसे आम से खिताब के लिए पहुंचे वजीर आला का सिख मजहबी रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आला ने गुरुद्वारे में दुआ के बाद आशीर्वाद हासिल किया। MLC के कविता, MP BB पाटिल, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन चेयरमैन रविंदर सिंह, वजीर इंदिरा करण रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। कबलजी हवाई अड्डा पहुंचने पर बीआरएस सरबराह ने छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे को खिराज अकीदत भी पेश किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से सूर्यापेट जिले के मामिला गुड़म की ईदगाह का तहफ्फुज करने की मांग की है। MBT कायद ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए मुनज़्ज़म की जा रही ईदगाह का, जिसका सर्वे नंबर 290 है, दौरा किया है। इस मौके पर सदर मस्जिद शेख साइदुल्लू, उमर सादी और दीगर कमेटी मेंबरान ने उन्हें बताया कि ईदगाह की 9 एकड़ 20 गुंटा अराजी वक्फ है। ताहम रेवेन्यू हुकाम दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी अराजी है। जिला कलेक्टर और RDO की जानिब से भी मुकामी मुसलमानों पर इसके बदले रकमी मुआवजा कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बताया गया है कि 20 साल से ईदगाह में नमाज ईद अदा की जा रही है। ताहम वक्फ अराजी को सरकारी अराजी बताया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से इस मामले में मुदाखलत करने और 9 एकड़ 20 गुंटे पर मुश्तमिल अराजी का तहफ्फुज करने पर जोर दिया है। उन्होंने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी, कांग्रेस के नलगुंडा रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी, रुकने असम्बली मल्लैया यादव से ईदगाह का तहफ्फुज करने का मुतालबा किया।
ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट की मस्जिद अल हसनात में तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी के इश्तराक से लगाए गए इस कैंप में 250 से जायद अफराद बिलखुसूस नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। साउथ जोन एडिशनल डीसीपी बी आनंद व दीगर ने भी इस मौके पर शिरकत की है। मौलाना सैयद खतीबुद्दीन नदवी ने मीडिया को तमाम तफसीलात बताई। आज ऑल इंडिया तहरीक पयाम इंसानियत की तरफ से तलस्मिया मासूम बच्चे हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये तहरीक पयाम इंसानियत का तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। अब तक तकरीबन 220 और 25 के करीब डोनर्स ने अपना खून डोनेट कर चुके हैं। ये ब्लड डोनेशन बहुत कीमती इस माना में है कि तलस्मिया एक ऐसी बीमारी है जो मासूम बच्चों को बाय बर्थ होती है और जिस्म में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिसकी वजह से बच्चों को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है और इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तलस्मिया स्किल सोसाइटी में 3700 बच्चे इस वक्त में ज़ेर इलाज हैं, उनको खून की सख्त ज़रूरत है। एक मासूम बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जिसको महीने में 6 मरतबा खून चढ़ाया जाता है। जब उसके डिटेल्स मेरे सामने आए तो हमने हमारे साथियों से डिस्कस किया तो सब ने ये कहा कि इंशाल्लाह हम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। ये हमारा तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप भी जारी है, 5 बजे तक रहेगा। मैं इस चैनल के ज़रिए सबसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर अपना खून डोनेट करें, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने में मदद करें। तहरीक पयाम इंसानियत ईस्ट जोन हैदराबाद गुज़िश्ता 5 सालों से समाजी रिफाई खिदमत अंजाम दे रही है। हम ब्लड डोनेशन के साथ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं और गांधी हॉस्पिटल के पास गुज़िश्ता 4 साल से नॉन स्टॉप 500 से ज़ायद वहाँ पर मरीज़ लोग और मरीज़ों के साथ आने वाले अटेंडर्स उनके लिए नाश्ता फ्री प्रोवाइड करते हैं, इंतज़ाम करते हैं सुबह 7 बजे। ऐसे ही समर वेकेशन में पानी का भी इंतज़ाम किया जाता है। कहीं से कोई रेयर रिक्वायरमेंट आया ब्लड डोनेशन का, हम वो भी करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस काम से जुड़िए। इंसानियत की खिदमत बहुत ज़रूरी है। दुनिया में इंसान तो बहुत पाए जाते हैं, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, हमदर्दी ख़त्म होती जा रही है, एक दूसरे का दर्द बांटने वाले कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग फुटपाथ पर भूखे पड़े हुए हैं, खिलाने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग परेशान और मजबूर हाल है, उनको सही रास्ता दिखाकर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। तहरीक पयाम इंसानियत ईस्ट जोन हैदराबाद ये काम कर रही है। तहरीक पयाम इंसानियत के प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व नाजिम नकबतुल उलमा लखनऊ है और इसके जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल्लाई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम है, जिसकी निगरानी में पूरे हिंदुस्तान में ये काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स यूट्यूब। जिले मेडचल के बोडुपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वक्फ बोर्ड मुतासिरीन यूनाइटेड एक्शन समिति के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। अम्बेडकर मुजस्समे के करीब होने वाले एहतजाज में अवाम की कसीर तादाद बशमुल खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया और हुकूमत से कॉरपोरेशन की तकरीबन 400 एकड़ अराजी में से 90% से जायद रकबे पर रहने वाले लोगों के मसाइल हल करने की मांग की। गुज़िश्ता 4 सालों से कोई रजिस्ट्रेशन न करने से अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आने का पता चला है। एहतजाजियों ने कहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज किया जा रहा है लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मेडचल जिला कांग्रेस पार्टी लीडर कोटा किशोर गौड़ ने इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की मांग की है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह। एंजल्स फर्टिलिटी राब्ता फाउंडेशन और डॉक्टर नौशीना डायग्नोस्टिक के ज़ेर एहतमाम खवातीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। नौशीना नोबल अस्पताल वाक़ आसिफ नगर में मुनक़िद तिब्बी कैंप के ज़रिए डॉक्टर नौशीना व दीगर ने लावल्द जोड़ों के तिब्बी मुआयने किए और उन्हें इलाज तजवीज़ किया। ये तिब्बी कैंप बांझपन और ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतासरीन के लिए कारआमद साबित हुआ है। गायनिक, पीसीओडी, लैप्रोस्कोपिक व दीगर मसाइल से 2-4 ख़वातीन को मुफीद मशवरों से नवाजा गया है। डॉक्टर नौशीना ने बताया कि राब्ता फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं। आइंदा इतवार 12 फरवरी को मोगलपुरा आजम फंक्शन हॉल में भी ये कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। राब्ता फाउंडेशन की सदर
सोबिया जुवेरिया ने खवातीन से इस तिबी कैंप से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की है। सो बेसिकली PCOS या एंडोमेट्रियोसिस, ये जो फीमेल्स के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी वेट रिलेटेड होते हैं, जिस वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो हमारी कंपनी वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट पे काम करती है। हमने PCOS पेशेंट्स पे, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स पे पहले भी बहुत काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। जो फर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो वेट लॉस के बाद में काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।